Good morning, student. Now I am going to start the new chapter of geography, manufacturing industry. My dear students, first of all, we have to study what is manufacturing. Okay, the manufacturing students, productions of goods in large quantities, productions of goods in large quantities through the processing raw material through the processing of raw material is referred as manufacturing. हम इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम raw materials is known as manufacturing. Okay, student? Manufacturing usually comes from the secondary sector. It comes under the secondary sector. We have already discussed before that there are the three economic sectors: primary sector, which include agriculture, fishing, mining; secondary sector, which is related to the manufacturing; and service sectors that provide the service. Okay, so manufacturing is mainly students based on machine. Manufacturing based on machine students. ठीक है, that machine convert raw material that we got from the primary sector into the finished goods. ठीक है, आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, आप शुगर केन को लीजिए. शुगर केन स्टूडेंट्स टर्न्ड इनटू शुगर आफ्टर प्रोसेसिंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थ्रू द मशीन. ओके, तो conversion of primary goods into the finished goods not only improve its quality and utility. Okay, it not only improve quality and utility but also students value. Okay, suppose I am wearing a shirt students, ठीक है, that has manufactured through the cotton. But if we talk about the value of cotton and the shirt, there is the differences. It is because it has turned now into finished goods. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द रॉ मटेरियल्स है ना, थ्रू द मशीन, नॉट ओनली स्टूडेंट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स, यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, बट आल्सो इंक्रीज द वैल्यू. ठीक है, और इट स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड ए नंबर ऑफ पीपल आल्सो that get job in manufacturing sector. So these manufacturing sectors mainly students comes under the secondary sectors which have a lots of activities. Okay, and that due to that activity a number of people students employed there. ठीक है, तो अगर आप डिफिनेशन देना चाहें तो डिफिनेशन में आप क्लियरली लिख सकते हो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शंस इन लार्ज क्वांटिटी after processing the raw materials is referred as manufacturing. It comes under the secondary sector. There are the various example of manufacturing. आप कुछ का भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉटन इंडस्ट्रीज दे सकते हैं, मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज दे सकते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज दे सकते हैं. तो दीज ऑल कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स. ये सारा का सारा जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में दे सकता है. It is said that economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. ठीक है, आप देखते हैं पश्चिमी देश चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, है ना, ये हाईली डेवलप है. तो इट इज़ ड्यू टू स्टूडेंट्स, इट इज़ बिकॉज they say that industry developed in that country in 17th century, while in India it has developed in 20th century. There is the differences of 3 century students. ठीक है, तो ड्यू टू दैट कंट्री इज हाईली डेवलप, और यही कारण है कि वो कंट्री जो है वो हाईली डेवलप है. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको. ठीक है, कि व्हाई द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स इसकी एडवांटेज लिख सकते हो. तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एडवांटेज क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप कैसे ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इज कंसिडर्ड द बैकबोन, it is considered the backbone of the development in general
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेज स्टूडेंट्स ऑफ इट। तो इसका बहुत जो एडवांटेज है, ठीक है ना, वो क्यों है, क्या कारण है, ठीक है, या व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज रेफर्ड एज द मीन्स कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, तो इट इज बिकॉज स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प to modernize the primary sector, I mean to agriculture, which form the means backbone of the economies, but also students it reduce burden from the agricultures over the agricultures। ठीक है, अब जैसे इंडस्ट्री नहीं है तो लाइवलीहुड क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अराइवल ऑफ इंडस्ट्रीज या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम एग्रीकल्चर्स, बर्डन ओवर द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से ये बर्डन जो है स्टूडेंट्स वो कम कर देता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स इट इराडिक्ट पोवर्टी। दूसरा पॉइंट में क्या देना है कि इट इराडिक्ट पोवर्टी, ये पोवर्टी को भी इराडिक्ट करता है। ठीक है, इट इराडिक्ट पोवर्टी, ये पोवर्टी को भी इराडिक्ट करता है। तो पहला क्या हो गया कि रिड्यूस बर्डन ओवर द एग्रीकल्चर्स के भार को कम करता है, एंड आल्सो मॉडर्नाइज इट, और इसको मॉडर्नाइज भी करता है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स कि इट इराडिक्ट पोवर्टी। ठीक है, इट इराडिक्ट द पोवर्टी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इट इज बिकॉज इट प्रोवाइड मैक्सिमम जॉब टू द पीपल आर नाउ एम्प्लॉयड इन स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेक्टर्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्या है स्टूडेंट्स कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स स्टूडेंट्स हेल्प टू एक्सपेंड द ट्रेड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोडक्शंस करेंगे, तो लार्ज क्वांटिटीज़ में जब प्रोडक्शंस होगा तो स्वाभाविक है स्टूडेंट्स कि ट्रेड विकसित होगा, व्यापार विकसित होगा। ठीक है, और इस व्यापार से बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट्स रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज स्टूडेंट्स मीन्स ये क्या होता है ना कि इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, ये सब का विस्तार हो जाता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है। ठीक है, तो एक एडवांटेज ये भी है। फिर से एडवांटेज को आप देखिए, पहला रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड आल्सो मॉडर्नाइज इट। एकदम कॉमन शब्द में याद रखना है कि इट रिड्यूस बर्डन फ्रॉम द एग्रीकल्चर्स एंड मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर। दूसरा it eradicts poverty by providing large employment into the secondary sector। तीसरा manufacturing in large quantity help to expand the trade। ठीक है, and चौथा स्टूडेंट्स कि export of goods from one to another country help to gain the foreign exchange और foreign currency। इसे foreign currency का भी खजाना बढ़ता है देश में स्टूडेंट्स, तो एक फ़ायदा यह भी है। ठीक है, और डेवलपिंग इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स मेक आवर लाइफ स्टाइल मोर स्मूथ। ठीक है, या आप देखो कि अगर आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं रहता तो जिस हिसाब से स्टूडेंट जनसंख्या बढ़ रही है तो मैनुअली प्रोडक्शंस करके हम इनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, आज हमारा प्रोडक्शंस मशीन के जरिए होता है, दैट हेल्प टू स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नाउ मोर मीन्स फूड ग्रेन। आप ट्रैक्टर देख लीजिए, हार्वेस्टर देख लीजिए, थ्रेसर देख लीजिए। ठीक है, तो ड्यू टू द मशीन स्टूडेंट्स या ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से जो है आज हम अधिक से अधिक प्रोडक्शंस कर पाने में सक्षम हैं। तो ये एडवांटेज है, एंड दैट इज वाई द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नोट्स तो आपको मिलेगा ही स्टूडेंट्स, नोट्स देखिएगा एटलीस्ट वन टाइम स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर सेल्फ रीडिंग। आप सेल्फ रीडिंग करो, तब आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए सेल्फ रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ नाइस डे।